کسی کو ملکی تعمیر و ترقی کے لیے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کی ملاقات۔ پی ٹی آئی کمیٹی سے مذاکرات کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے اور مذاکرات جمہوریت کی روح ہیں۔ سیاسی رابطوں سے ملک اور قوم کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مذاکرات سے گریز غیر جمہوری رویہ ہے جس سے کشیدگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، قومی یکجہتی کی فضا کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات ہے۔ پی ٹی آئی وفد آج جے یو آئی سربراہ سے ملاقات کرے گا۔ تحریک تحفظ آئین کے قائدین بھی شامل ہوں گے۔ پی ٹی آئی وفد تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے کرے گا۔ ملاقات میں گرینڈ اپوزیشن الائنس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بانی کی ہدایت ہے اپوزیشن جماعتوں کا ایک اتحاد ترتیب دیا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما اخوند زدہ حسین یوسف زئی۔ مذاکراتی کمیٹیوں کا چوتھا راؤنڈ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ پی ٹی آئی مطالبے پر جوڈیشل کمیشن بنے گا یا نہیں، حکومت نے تحریری جواب تیار کر لیا۔ حکومت آج ہونے والی کمیٹی کے اجلاس میں جواب پیش کرے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، عمر ایوب اور اسد کیسر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آج ہونے والے مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ ہر معاملہ خوش اسلوبی سے طے کیا جا سکتا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کے پلیٹ فارم سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے چوتھے دور کے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ ہم آج کی میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے، سرکاری سیکرٹری اور اسپیکر کو آگاہ کر دیا۔ مذاکرات کے حوالے سے ہم نے 7 دن کا وقت دیا تھا۔ میڈیا کے جائز حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ڈیرہ جیل میں ملاقات۔ خیبر پختونخوا کے ترقیاتی منصوبوں، پارٹی امور اور سیاسی معاملات پر گفتگو۔ 8 فروری کو پشاور میں جلسے کے حوالے سے بھی مختلف امور پر مشاورت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ اپوزیشن کا متنازع پیک ایکٹ کے خلاف سینٹ اجلاس میں شدید احتجاج اور شور شرابہ۔ پیک ایکٹ نامنظور، صحافیوں پر حملہ، نامنظور کے نعرے۔ پی ٹی آئی ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ صحافی متنازع پیک ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف سینٹ اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ پی ٹی آئی ارکان کا بھی پیک ایکٹ کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ۔ سینٹ کا اجلاس آج صبح 11:30 بجے ہوگا۔ 14 نکاتی ایجنڈا جاری۔ پیکا ترمیمی بل 2025 کی منظوری ایجنڈے میں شامل۔ متنازع پیکا ترمیمی بل ریکونین قانون ہے۔ متنازع پیکا ایکٹ میں فیک نیوز کی ایک نئی تشریح کی گئی۔ فیک نیوز کی نئی تشریح سے اظہار رائے کو کچلنے سے جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ متنازع پیکا ایکٹ پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ اظہار رائے کی آزادی جمہوری نظام کی روح ہوتی ہے جس پر قدغن لگائی گئی۔ متنازع پیکا ایکٹ پر حکومت دوبارہ جوائنٹ کمیٹی بنائے۔ سینیٹر علی ظفر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ ہم فیک نیوز کے خلاف ہیں۔ فیک نیوز، غلط خبر وہ نقصان پہنچاتی ہے اور اس کے خلاف ہیں۔ ہم اس کی ریگولیشن کے بھی حق میں ہیں۔ اس ترمیم پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو لے کے آ رہی ہے حکومت، لیکن ہمیں نہیں موقع دیا گیا۔ آپ واک آؤٹ کیے، ہم آپ کے ساتھ آ کے اوپر بیٹھے۔ اظہار رائے ہونا چاہیے، اسی طرح ایک سوسائٹی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ آپ اس کے اوپر دوبارہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنائیں جس میں برابر کی ریپرزنٹیشن ہو۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے متنازع پیکا ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ نے بل کی مخالفت کی۔ اتنی جلدی بل کیوں منظور کیا جا رہا ہے؟ کم وقت میں قانون پڑھا ہی نہیں جا سکتا، مشاورت کیا کرے؟ پیکا ترمیمی بل میں بہت سی کمزوریاں ہیں۔ کامران مرتضیٰ کی کمیٹی اجلاس میں گفتگو۔ وزیر اطلاعات کے ساتھ صحافیوں کی ملاقات میں کچھ ترامیم پر اتفاق ہوا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر سینٹ داخلہ کمیٹی کی رپورٹ تیار۔ چیئرمین داخلہ کمیٹی سینیٹر فیصل سلیم نے بل کی مخالفت کی اور تحفظات کا اظہار کیا۔ پیکا ترمیمی بل کو کثرت رائے سے کمیٹی سے منظور کیا گیا۔ رپورٹ چیئرمین سینٹ کو ارسال۔ پیکا ترمیمی بل کے حوالے سے ہم اس قانون کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کرتے ہیں۔
पाकिस्तान भर में हमने एहतजाज की कॉल दी है। तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, जलसे जुलूस और रैलियां निकाल कर पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। PFUJ ने मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ आज मुल्क की एहतजाज की कॉल दे दी। तमाम सहाफ़ी तंजीमों को आज दिन 3 बजे भरपूर एहतजाज की हिदायत। आज से आज़ादी सहाफ़त तहरीक का आगाज़ होगा। जल्द से जुलूस और रैलियां निकालकर सहाफ़ी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अगले मरहले में ट्रेड यूनियंस को भी तहरीक में शामिल करेंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने की होगी। पीका एक्ट के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। बिल लाने से पहले किसी सहाफ़ी तंजीम से मशवरा नहीं किया गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जॉइंट एक्शन कमेटी की PFUJ के मुल्कगीर एहतजाज की हिमायत। एहतजाज में शिरकत का ऐलान। जॉइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को अक्सर मुस्तरद करती है। मुतनाज़ा एक्ट के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जदोजहद की जाएगी। सहाफ़ी तंजीमें पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम दे। हमारे रिजर्व्स जो है वो दिसंबर तक उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर था। सब जो है मिलके करंट अकाउंट की सिचुएशन को इसमें काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे रखा हुआ है। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के नतीजे में इन्फ्लेशन चूँकि काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है, अब जो रिवाइज अभी हम देंगे तो इस साल का असेसमेंट जो है वो अगेन हमने उसको मेनटेन किया है कि GDP ग्रोथ जो है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान फॉर करंट फिजिकल ईयर वो रहेगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 13% से कम होकर 12% कर दी गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी की बड़ी वजह है। मुआशी अशारिया मस्बत है। महंगाई और करंट अकाउंट खजाना खातिर ख्वाह कम हुआ। दिसंबर तक ज़र मुबादा के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। मरकजी बैंक के ज़र मुबादा के ज़खायर 11.44 अरब डॉलर हो गए। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादा के ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। करंट अकाउंट सरप्लस होने से ज़र मुबादा ज़खायर में इजाफा हुआ। बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंकों को बाइख्तियार बना दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। पुरुमीद हो आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतों में बड़ी कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। बस चले तो पूरे पाकिस्तान का टैक्स रेट 15% कम कर दूं, मगर IMF की वजह से मजबूरी है। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अखराजात कम करने के लिए चंद सरकारी इदारे बंद कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन को शफाफ नीलामी से निजी शोबे को देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की तारीख में। इस वक्त आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। रवा माली साल के पहले 6 माह में मुआशी बेहतरी के आसार। पहली शशमाही में तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात में इजाफा। स्टेट बैंक के माली ज़खायर में इजाफा और रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 29.3% का इजाफा हुआ। बरामदात में 9.8%, दरामदात में 14.5% का इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल की निस्बत FBR महसूलात में 35.1% का इजाफा हुआ। नॉन टैक्स आमदनी में 5 माह के दौरान 94.5% इजाफा हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना ने पहली शशमाही के दौरान मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रीजनल नायब सदर वर्ल्ड बैंक की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मार्टिन राइजर ने पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम पर रीजनल चैंपियन करार दे दिया। गुरबत के खात्मे, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। माहौलियाती बेहतरी और सैनिटेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। तालीम, सेहत, सियाहत, माहौलियात के प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक की मज़ीद मुआवनत के ख्वाह हैं।
वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी का खात्मा बका का मामला है, वर्ल्ड बैंक की मुआवनत काबिल कदर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील। 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। फैसले में तो कमेटी अरकान को तौहीन का मुर्तकब ठहराया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकब कहकर उन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया। क्या तौहीन के मुलजिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? रोज का जो तमाशा लगा हुआ है, ये तमाशा तो खत्म हो। देख लेते हैं ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कैसे हुई। देख लेते हैं क्या कमेटियों के फैसले इस बेंच के सामने चैलेंज हुए थे। जस्टिस अतर मिनल्ला का बेंच से अलग होने का इंदिया। नजर अब्बास की इंटर कोर्ट अपील वापस लेने की सदा। आप अपना दावा वापस ले सकते हैं, दरख्वास्त नहीं। दरख्वास्त अब हमारे सामने लग चुकी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास की इंटर कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दिया। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं की गई। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालती हुक्म को ख़त्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। बात यूं नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जो जिस कमेटियों के खिलाफ होती है। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। GHQ हमला केस में बानी PTI की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। नैब ने बदनीयती से अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़िया करता है। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तिगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। दरख्वास्त का मतन अदालत से सदा का अदम करार देने की सदा। सेनेट की कायमी कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल नेशन बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सेनेटर जाम सैफुल्ला ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आप अदालतों का हक कैसे ले सकते हैं, बिल मंजूर करने के लिए इतनी उजलत की क्या ज़रूरत है। अनुषा रहमान बोली, डिजिटल नेशन के तहत पूरे पाकिस्तान ने डिजिटल बनाना है। ये एजेंसी दुनिया भर में ग्रांट्स लेगी। नादरा का डिजिटल पाकिस्तान में वजारत IT के साथ मुकाबला है। नादरा हमारे अंगूठों के निशानात को बेचता है। सेनेटर पलवशा खान ने कहा है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल ना होने से कैसे डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। इंसानी स्मगलिंग का मुकम्मल सदेबाब मुश्तरका कोशिश और ताउन से मुमकिन है। मराकश कश्ती हादसे में 27 इंसानी स्मगलर्स की शनाख्त हो गई। 5 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए टास्क फोर्स का इजलास। इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के कसूरवार इश्तहारी मुजरमान के रेड वारंट जारी करने की भी हिदायत। FIA फैसलाबाद की कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस एजेंट गोजरा से गिरफ्तार।